Hello friends, welcome to Paralegal Study. We will discuss our sixth unit, that is strengthening democracy through governance. Friends, in this channel we have two type of audience, means one particular audience or students came from the northeast and south India, and some other students from the north region. So I prefer bilingual language, and I my all lectures delivered in the bilingual language. So I speak both in Hindi and English, and you can get easily idea and you can easily understand through your own language. So friends, what do you mean by means how democracy means? In introduction part we analysis that how democracy plays an important role in the economy of India. So friends, India is a progressive, means India is continuously moving in every field, either in the economy, either in literacy, infrastructure, health sector, defense, space and space sectors, food grain, science and technology, and etc. And now Indian economy has undergo a large structural shift, means Indian's economy is the world fifth largest economy uh, आफ्टर ओवरटेकिंग द यूके इकोनॉमी. सिंपल सी हम भाषा में बात करें कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव हो रहा है, मीन्स समय के साथ इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है इन एवरी सेक्टर, आइदर इन इकोनॉमी, लिटरेचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, स्पेस एंड सेक्टर, डिफेंस और फूड ग्रेन्स, हर चीज़ में हम अच्छा कर रहे हैं. तो इसका जो सारा क्रेडिट जाता है, इट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, मीन्स आवर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, और जहाँ पे हमने चीज़ों को बहुत स्मूथली हम लेके चलते हैं, और यहाँ पे फ्रीडम के साथ साथ हमें मीन्स सोशल जस्टिस के साथ साथ अलोंग विद द सोशल जस्टिस वी इंजॉय द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एज वेल. एंड अभी लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बन गई है, हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है. नेक्स्ट है फ्रेंड कि व्हाट डू मीन, व्हाट आर द वेरियस definitions and the features of the democracy. So the first important definition of the democracy means democracy is a system of government under which people either directly or through their representative govern the country. And the representative of the people of various institutions such as the parliament or the state legislative assemblies. So we can say that in easy language we can say that democracy means the will of the people. And apart from the democratic parliamentary setup, all citizens we enjoy equal rights and freedom, and we also participate in the democratic processes through the election. ठीक है, तो सिंपल सा है कि डेमोक्रेसी का मतलब भी है जहाँ पे पीपल जो हैं वो डायरेक्टली उनके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है. इसके अलावा रेगुलर टाइम पे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव हो, चाहे पंचायतों के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा के चुनाव हो, पीपल्स ऑलवेज इंगेज्ड इन द पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी. और हम सिंपल भाषा में कहें तो डेमोक्रेसी मीन्स द विल ऑफ द पीपल. एंड इंडिया ऑल्सो प्रूव्ड सम थिंकर्स रॉन्ग, मीन्स अकॉर्डिंग टू द JS Mill, डेमोक्रेसी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन द मल्टी एथनिक सोसाइटीज़. मीन्स JS Mill ने कहा था कि डेमोक्रेसी वहाँ पे काम करेगी ही नहीं जहाँ पे मल्टी एथनिक सोसाइटीज़ हैं, बट इंडियन जो डेमोक्रेसी सेटअप है प्रूव्ड वेरियस थिंकर्स एंड देयर आइडियोलॉजी. तो हमने JS Mill को भी रॉन्गली प्रूव किया. उन्होंने बोला था कि मल्टी एथनिक में तो डेमोक्रेसी काम ही नहीं करेगी यहाँ, लेकिन यहाँ तो इतना अच्छे से कर रही है. इन द सेम वे अदर थिंकर रॉबर्ट ढाल also pointed out that the poverty and the illiteracy is the anathema to a stable democracy. means anathema means अभिशाप, कि जो रॉबर्ट ढाल है उन्होंने कहा था कि जहाँ पे पॉवर्टी है, जहाँ पे लिटरेसी है, वो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी कभी भी सर्वाइव नहीं करेगी, और डेमोक्रेसी जो है वो एक कुछ समय के बाद वहाँ पे शायद दम तोड़ देगी. बट इंडियन डेमोक्रेसी एंड द पीपल इज ऑल क्रेडिट गोज टू द इंडियन पीपल. इंडियन पीपल proved many thinkers like JS Mill's idea and the Robert Dahl idea. We proved them, and Indian democracy is the best example in the world where we enjoy various type of freedom, and apart from the freedom we also growing in a better economic development. And we also, India is a multi-ethnic country where we enjoy diversity in every field, means in either culture, language, religion.
सो ये मतलब दिखाता है कि डेमोक्रेसी में इस तरीके से भी रहा जाता है। एंड स्पेशली इंडियन डेमोक्रेसी तो एक तरीके से कह सकते हो आप कि बेस्ट रिसर्च बना हुआ है यूरोपियन लोगों के लिए, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी वॉज फ्रेगमेंटेड। अगर हम स्टार्टिंग से ही देखें उनको, तो यूरोपियन सोसाइटी पूरी स्टार्टिंग से ही वो फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में वो रही हैं, ठीक है। और वहाँ पे यूरोपियन जो सोसाइटीज़ हैं, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि यूरोपियन सोसाइटीज़ के लिए तो ये सच में अचंभा है कि इंडिया जैसा जो इतना मल्टी डायनामिक या मल्टी जो डाइवर्सिटी वाला कंट्री, जहाँ पे अराउंड 140 करोड़ के आसपास जहाँ पे लोग हैं, और वो इतने सिंपल वे में, हेल्दी वे में वो ग्रो कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और ये सारा क्रेडिट हम जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, इंडियन पीपल्स हैं, उनको जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू गवर्नेंस। सो व्हाट इज मीन बाय दैट? Means constitution of India and its contribution means our Indian constitutions is the main pillar, foundation where we enjoy a lot of freedom, and our constitutions give the absolutely way of governance related issues. And constitutions, the means the betterment of the constitutions contribute the strengthening democracy through the governance. One of the famous quote of the Abraham Lincoln, that of the people, by the people, and for the people, and the Gandhi's idea of self-governance at the village or root level show the importance of the good governance in the society. तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक ही पूछा है इन्होंने कि भाई कैसे गवर्नेंस को हेल्प की है, जो हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके जो आइडियाज़ हैं, उन्होंने कैसे हेल्प की है गवर्नेंस को बेहतर बनाने में, डेमोक्रेसी को मजबूत करने में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम लिखेंगे कि भाई जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको अपनाने के बाद अगर हम रियल में देखें तो गांधी का जो कॉन्सेप्ट था कि ग्रास रूट लेवल पे हमें मतलब सेल्फ गवर्नेंस की उन्होंने जो बात की थी। इसके अलावा जो अब्राहम लिंकन का भी जो कोट है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल, ये इंडियन जो डेमोक्रेसिक जो सेटअप है और जो इंडियन पूरा सेटअप है उसमें बिल्कुल चीज़ें फिट बैठती हैं। एंड द फ्रेमर, द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एड्रेस द कंट्रीज जियोग्राफिकली, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। एंड व्हेन वी अडॉप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, means Indian Constitution came into force on 26 January 1950, and which clearly cuts the role of executive, judiciary and the legislature। कि हमारे फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क है, उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकारा था, और ये जो इंडिया की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी है उसको उन्होंने अडॉप्ट करते हुए ही ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए गए थे, लोगों को एंजॉय और फ्रीडम मिली थी। और 26 जनवरी 1950 के बाद, मीन्स 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ, उसमें स्पेशली ये चीज़ मेंशन थी कि यहाँ पे जो रोल है, जो 3 इम्पोर्टेंट जो पिलर हैं, अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी ये में या कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, तो इनके अलग अलग इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया। लेजिस्लेचर्स वो होते हैं, द लेजिस्लेचर इज़ द इंस्टीट्यूशंस हु मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव इज़ द इंस्टीट्यूशन हु इम्प्लीमेंट द लॉ, एंड द जुडिशरी इज़ द इंस्टीट्यूशन हु solve the dispute issues and dispute mechanism institutions. So the aim of the constitution, which is clearly stated that the preamble, तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग में ही जो प्रीमेबल है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी, एंड इंडियाज अडोप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्जियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक स्टेट, एंड ऑल्सो give to all the citizens of India socially, economically and political justice, liberty of the thought and expression, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all fraternity, ensure the dignity, mutual respect, unity of the nation. So these all terms जो हमने अभी जैसे देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक एम है, जो स्टार्टिंग में ही हमने पहली बात तो मल्टी एथनिक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए जो चेंजेस किए, जो हमने लोगों को यहाँ पे फ्रीडम दी, हर किसी को यहाँ पे इस तरीके से अधिकार मिले हुए हैं कि किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं, मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज़ समथिंग
इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो हमारा प्रीमेबल जो है स्टार्टिंग में, वो पूरा की पूरा ऑब्जेक्टिव और हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक तरीके से सोल, जो आत्मा है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे हमें इंटीग्रिटी भी वहाँ कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। इसके अलावा फ्रीडम भी वहाँ बात है, और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस की बात है, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी इन द स्टेटस, इक्वालिटी इन द अपॉर्चुनिटी, है ना, और फर्टर्निटी, ब्रदरहुड की फीलिंग। मतलब ये जो सारे टर्म्स हैं, आपने ज़रूर बार बार ये देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो ये वर्ड्स हैं प्रीमेबल में, वो सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारी ऑब्जेक्टिव, हमारा सोल, एक एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को ही हमने अपना के, और उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था गुड गवर्नेंस का, कि सेल्फ गवर्नेंस की जो उन्होंने बात की विलेज लेवल पे, वो सारी चीज़ें जो हैं हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको सेटअप करने में, डेमोक्रेसी को और मजबूत स्ट्रेंथनिंग करने में। इसके अलावा और नेक्स्ट है कि गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड द ऑपरेशनलाइजेशन। तो इसका क्या मतलब है कि द इंडिया एंड मैनी डेवलप्ड कंट्री हैव फेस्ड गवर्नेंस एंड द बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्राइसिस। मीन्स 1970s 80s के आसपास क्या हुआ, मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड फेसेस द क्राइसिस इन द डेमोक्रेसी, स्पेशली जैसे बांग्लादेश बना, फिर उस दौरान पाकिस्तान में क्राइसिस जो हुए, और अदर जगहों पे। तो हमें ये समझना होगा कि जिस दौरान ये क्राइसिस चल रहे थे और ओवरऑल दुनिया में, उसी दौरान इंडिया इंट्रोड्यूस द न्यू सेटअप ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, especially we can say after the LPG reforms, which is introduced by the international bodies like इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। तो उन सब के इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडिया अडोप्ट द LPG रिफॉर्म्स। और उसमें क्या था कि हमने, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फिर उसमें इंक्लूड किया ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एंड ऑल्सो प्रो वुमेन, प्रो पुअर, प्रो इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़। तो प्रो का मतलब होता है इन फेवर ऑफ। तो सिंपल है कि जब दुनिया में क्राइसिस चल रहा था तो इंडिया को लगा कि वी शुड चेंज आवर पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिकल सेटअप। तो जो पहले हमने जैसे बात की कोएलिशन गवर्नमेंट उस दौरान जो देखने को मिलती हैं, उसमें भी कुछ रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो उभर के आते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ने जो रिफ़ॉर्म की बात की थी, इंडिया उनको भी अपनाता है। यहाँ पे LPG रिफॉर्म्स की बात होती हैं। और इस तरीके से पूरी जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, एफिशिएंसी और प्रो वुमेन, इन सब की बात, मीन्स जो वुमेन के लिए जो फ़ायदेमंद हो, गरीब लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के फेवर में हो, उन सब पॉलिसीज़ को हम अपनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक शिफ्ट दिखाता है कि कैसे हमने क्राइसिस के बाद अपने आप में चेंज किए। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द वी कैन से दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द इंडिया माइंड सेट। मीन्स इंडिया ऑलवेज अडोप्ट द चेंजेस और ऑलवेज अडोप्ट द न्यू मेथड ड्यूरिंग द आफ्टर द क्राइसिस। हमेशा, जैसे अभी देखो, एक गवर्नमेंट का नारा है कि सेल्फ रिलायल होने की जो बात की गई है, सिर्फ सेल्फ रिलायबल, उसका मतलब ये आत्मनिर्भर भारत के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम दूसरे देशों पे डिपेंड ना हो। बिकॉज वी सो इन द ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ द कोविड एंड वी सी इन द करंट सिचुएशन बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया वार की, वहाँ पे क्या है, एनर्जी सप्लाई जो है वो एक तरीके से उस पर अफेक्ट पड़ा है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम एंड अदर रिलेटेड जो कुछ जो एनर्जी सप्लाईज होती हैं, फूड सप्लाई, हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ये ऑल दीज थिंग्स क्या है, मीन्स आफ्टर द कोविड हमारा जो सेल्फ रिलायबल जो कॉन्सेप्ट है या खुद में आत्मनिर्भर होने का जो एक विज़न है, ये बहुत सही, बहुत अफेक्टिव साबित होता दिखाई देता है, ताकि हम ऐसे अपने खुद पे ही डिपेंड हो जाएं, ताकि दूसरे देशों पे हमें ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा ना रहना पड़े। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और दूसरा एक और चीज़ अगर हम कहें उसमें कि जो ये हमने जो देखा था कि ये जो गवर्नेंस को, जो कॉन्सेप्ट को, कि किस तरीके से गवर्नेंस के जो कॉन्सेप्ट ने, तो जैसे गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसने भी इंश्योर किया इस चीज़ को कि जो लोग हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मीडिया और वेरियस स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिन्होंने, हमने गवर्नेंस का टॉपिक पिछला चैप्टर हमने अच्छे से समझा था, तो वेरियस स्टेक होल्डर्स हुए, ठीक है, मीडिया हुई
और ये सब लोगों ने भी टेक्नोलॉजी के बाद क्या हुआ है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे चेंजेस आए हैं और इन सब के चलते लोग आवाज़ उठाने लगे हैं, पार्टिसिपेट करने लगे हैं और ये सब के चलते ही हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब उसमें कुछ और स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू गवर्नेंस, तो उसके कुछ मेजर्स, वो हमने जो ऊपर जो टॉपिक देखा ये सारा हमने देखा कि किस तरीके से एक इंट्रोडक्शन कि हमने कैसे क्राइसिस के बाद भी रिफॉर्म्स में चेंजेस किए और इतनी बेहतर डेमोक्रेसी सेटअप हमने बनाया। अब कुछ मेजर्स और हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके तहत हम कह सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। सो वेरियस मेजर्स वी कैन conclude in this topic. So first major is the community development program which was introduced in the 1952. तो CDP जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं उसके तहत क्या था, विद द एम ऑफ द ब्रिंगिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट इन द रूरल एरिया। तो CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सबसे पहले, क्योंकि अभी जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं ना इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक मीन्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू द गवर्नेंस एंड वेरियस मेजर्स बिहाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी, उसमें हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट के बाद से पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी अडॉप्ट वेरियस मेजर्स, वेरियस पॉलिसीज एंड various reforms through which we can say that our democracy is continuously strengthening over the period of time. तो उसमें जो सबसे पहले मैंने बताया वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसने ओवरऑल रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात की। अनदर मेजर इज़ द फर्स्ट 5-year प्लान एंड विच itself the National Extension Service Program which introduced in the 1953. It also focused on the rural and the poor people, marginalized people. सो जो सेकंड मेजर्स था वो था फर्स्ट 5-year प्लान का एक पॉलिसी जिसके तहत नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को हमने इंट्रोड्यूस किया। थर्ड वन इज़ द प्लानिंग कमीशन इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस ऑफ द और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन द 1957 एंड प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड ए कमेटी हेडेड बाय द बलवंत मेहता और ऑल्सो फेमस नोन एज द मेहता या बलवंत राय मेहता कमेटी हु रिकमेंड द 3-tier पंचायती राज सिस्टम, जिसने 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम के सेटअप की उन्होंने जो बात की थी। प्लानिंग कमीशन पहले इंट्रोड्यूस किया। प्लानिंग कमीशन का काम ही था जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ओवरऑल रिफॉर्म्स देखेगा। अभी अगर लेटेस्ट में बात करें तो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्लानिंग कमीशन जो इंट्रोड्यूस हुआ उसी ने कमेटी अपॉइंट की थी जिसका नाम है बलवंत मेहता कमेटी। एंड बलवंत मेहता कमेटी ने ही जो रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए 3-tier स्ट्रक्चर उन्होंने बात किया था कि सबसे एक हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा जिला परिषद एंड जब पंचायत समिति वो होगा तहसील लेवल पे एंड सबसे नीचे ग्राम पंचायत दैट इज़ विलेज लेवल पे। तो 3-tier का उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की थी। बाद में हम बात करें द सिक्स्थ जो 5-year प्लान था उसने वाटर शेड मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने बात की, ठीक है ना, फोकस ऑन द वाटर शेड मैनेजमेंट। द 7th 5-year प्लान अडोप्ट द मल्टी-pronged strategies विच फोकस ऑन द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस गाँव में हर तरीके का डेवलपमेंट जो कराया जाए उसको लेके हमने 7th 5-year प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया हमारी पार्लियामेंट में। नेक्स्ट है द 9th 5-year प्लान जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की और वेरियस इंस्टीट्यूशंस विच एबल टू मेक डेमोक्रेसी मोर हेल्दियर और मोर पावरफुल, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ये है जैसे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आंगनबाड़ी जो सिस्टम है और इस तरीके से वुमेन हेल्प जो सेल्फ ग्रुप हैं जो खुद में ही रिलायबल होके जो काम करते हैं। तो ये जो सब इंट्रोड्यूस किया गया था 9th 5-year प्लान में किया गया था। फिर 10th जो 5-year प्लान है उसमें टारगेट किया गया पॉवर्टी को, लिटरेसी को इम्प्रूव करने में, पॉवर्टी को रिमूव करने में, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइडेड टू द विलेजेस लेवल, ये सब 10th 5-year प्लान में हुआ। फिर है 12th 5-year प्लान में फोकस ऑन द स्टेक होल्डर्स। हमने देखा था ये पूरा स्टेक होल्डर का चैप्टर, तो स्टेक होल्डर्स को साथ लाने की बात की गई। एंड फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट केम इन द 1992 जिन्होंने जो परमानेंटली जो गांव और जो शहरों में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके सेटअप की बात की। तो 73rd अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू द विलेज पंचायत एंड 74th अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू द सिटी, जो सिटी में जो पंचायतें होती हैं या म्यूनसिपल आप बोल सकते हो उनको, तो उससे रिलेटेड उसमें रिफॉर्म्स की बात की गई थी। और अभी जो गांव में जो सरपंच होते हैं और शहरों में जो म्यूनसिपल के जो कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं,
ठीक है, तो वो सारे क्या हैं, वो ये 34th एंड 74th अमेंडमेंट के तहत ही है। नेक्स्ट है 11th जो हमारा पार्ट है, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें स्पेशली पंचायत एक्सटेंशन की बात की गई। सो द एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट मीन्स जो ट्राइबल एरिया है ना, तो ट्राइबल एरिया में जैसे हमने पहले 73rd और 74th अमेंडमेंट अपनाया, 73rd में विलेज लेवल पे, 74 लेवल में शहरों में, म्यूनसिपल लेवल पे ग्राम, हमने एक तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप की बात की। फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं, ट्राइबल पीपल पीछे रह गए, तो फिर उसी को लेके हमने क्या किया, ये जो पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट जो आया 1996 में, जिसमें ट्राइबल लोगों के डेवलपमेंट की बात की गई। फिर बाद में हम बात करें SSA प्रोग्राम हमने चलाया, सर्व शिक्षा अभियान, और 986 जो अमेंडमेंट हुआ 2002 में, वो क्या है, वो इसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जिसे 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। इसके अलावा बाद में मनरेगा कॉन्सेप्ट, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो स्कीम है वो आई, ठीक है, जिसके तहत क्या है कि हर एक रूरल गांव में जो लोग हैं उनको 100 दिन का रोज़गार जो है सरकार प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा बाद में हमने 12th 5 ईयर प्लान जो है उसमें नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन की जगह उसको नीति आयोग में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और नीति आयोग का काम क्या है, ये एक थिंक टैंक भी इसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी रिफॉर्म्स हैं, उसको ये नीति आयोग ही देखता है। तो इस तरीके से वेरियस मेजरमेंट हमने जो पूरे अच्छे से देखा, ठीक है। तो जैसे उसमें ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, 7th। अब देखो ये 5 ईयर प्लान का मतलब क्या है, जैसे बजट जो होता है ना, जैसे अभी जब बजट आएगा, ठीक है, तो उस दौरान मीन्स जो हमारी ना क्या होता है, 5-5 साल का हम प्लान बनाते हैं, तो जो बिल्कुल आज़ादी के बाद जो पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया उसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान बोलते हैं। फिर बाद में सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से वेरियस 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सारे हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो ये है। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड देखो, आपको अगर नोट्स चाहिए, जैसे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज करके स्पेशली थैंक्स बोलते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको रिप्लाई में भी थैंक्स कहूँगा। तो वो देखो नोट्स की जो है ना ब्यूटी क्या है, जैसे ये नोट्स जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये प्रॉपर इग्नू जो मटेरियल है उसी के क्रीम जो नोट्स हैं वो होते हैं ये। और इसके अलावा कुछ वैल्यू एडिशन मीन्स नेट से उसको वैल्यू एडिशन किया जाता है। तो ये जो नोट्स हैं ये सिस्टमेटिक तरीके से हैं, जैसे प्रॉपर डेफिनेशन देख लो, ठीक है। लास्ट में जैसे हमने जो ये वेरियस मेजरमेंट पढ़े, तो इसको प्रॉपर देखो मैंने पॉइंट्स में बना रखा है कि कौन कौन से ये जो है ना डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन नोट्स को ईजिली बाई कर सकते हैं, जो भी जिसको रिक्वायरमेंट है। और नोट्स और लेक्चर के साथ अगर आप पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन बना के, तो आपके एग्ज़ाम में ज़बरदस्त आपको फ़ायदा उसका होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ओनली 10 रुपीज़ में पर्टिकुलर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और इस पर्टिकुलर यूनिट के। और दूसरा फ्रेंड्स, मैं लास्ट में ज़रूर ये चीज़ बोलता हूँ, जो लोग जॉब में हैं, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो हो सके तो प्लीज़ कुछ भी अमाउंट में डोनेट करें इस चैनल को। एंड मेरा एक ड्रीम है कि जो इस चैनल को मैं बहुत टॉप के ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है। तो उसमें अगर आपका कंट्रीब्यूशन होगा तो ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होगी। सो प्लीज़ अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और जिनका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है और जो कहीं ना कहीं थोड़े से पुअर हैं, तो कोई इशू नहीं है, तो जस्ट आप इंजॉय करो, आप सीखो और अपना एग्ज़ाम जो है पढ़ाई वो बेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, वही हमें सच में बहुत आगे लेके जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड वर्क हार्ड।